Dear students, welcome to the channel MR Maths Academy. We are studying mathematics. Mathematics paper first chapter, angles and its measurement. In this lecture, we will study directed angles and types of angles. So dear students, first of all, I would like to say welcome to all of you, and please subscribe the channel and share with friends. So dear students, let us start the chapter angles and its measurement. Students, we have learned the angles in high school geometry. In higher studies, mostly angle is studied in trigonometry. Let us see what is trigonometry. Trigonometry is combination of three words. First, tri. Tri means three. Gonon means angle. Metron means measure. So we can define trigonometry as one of the most useful branch of mathematics. It deals with measurement of angles and sides of triangle and the interrelation between them. Dear students, in high school geometry, angle is defined as the union of two rays having one common endpoint. Using this definition, we measure the angles between 0 and 180 degree only. This is the very smallest or simplest definition of angle, which meets the requirement of high school geometry. When we study trigonometry, we have to consider or expand the definition of angle. So we modify the concept of angle so that it can have any measure like positive, negative or 0. So we call such angle as directed angle. Let us see the directed angle. So this is the two non-collinear rays OA and OB meeting at point O. O is called vertex. The side you measure from is called initial arm. So in the figure, OA is initial arm. And the side you measure to is called terminal arm. And in figure, OB is terminal arm. So this is the basic information about angle. When we study directed angle, so its name suggests that here direction is very important. So dear students, we have two types of direction. One is clockwise, other is anti-clockwise. So this is the anti-clockwise direction. So in mathematics, anti-clockwise direction is called positive direction. An angle measured in anti-clockwise direction is called positive angle. Got it? The angle measured in
anti-clockwise direction is called positive direction, a positive direction or a positive angle. This is in this is the clockwise direction. This is clockwise direction, and in mathematics, the clockwise direction is called negative direction. An angle measured in clockwise direction is called negative angle. So such angle is called directed angle. So directed angle is angle which measures the rotation from initial arm to terminal arm in a specific direction, either in positive direction or anti-clockwise direction, either negative direction, that is clockwise direction. So this is the definition of directed angle. Let us define it. Directed angle. An angle can be defined as measure of rotation. Measure of rotation from initial position to terminal position is called directed angle, and it is denoted by directed angle AOB. It is denoted by this symbol. This symbol is for directed angle, and it is also denoted by ordered pairs of rays OA and OB. Here first OA is initial ray and OB is terminal ray. Notes. We know that in directed angle, direction is important. Therefore, the angle AOB, we can read it as directed angle AOB, directed angle BOA, or conveniently we can read AOB और एंगल BOA. यानी इसके बाद जब भी हम रीड करेंगे तो हमारे पास एंगल जब भी वर्ड जब हम रीड करेंगे अब फर्दर स्टडीज़ में तो माइंड में क्या होना चाहिए, डायरेक्टेड एंगल है, हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसकी. सो दिस इज AOB angle, directed angle AOB and directed angle BOA will not be equal because these are directed angle in which direction is important. So angle AOB and angle BOA are not equal. If the rotation of initial arm is anti-clockwise, then measure of directed angle is positive. ये ने already अभी देखा है. If it is clockwise, then measure of directed angle is negative. Dear students, when we are talking about directed angles, then directed angle includes two things. जब भी हम डायरेक्टेड एंगल को डील करेंगे उसके बारे में सुनेंगे तो माइंड में हमको दो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि डायरेक्टेड एंगल है दैट मीन्स अमाउंट ऑफ रोटेशन है. अमाउंट ऑफ रोटेशन मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल कि इस एंगल की मेजरमेंट कैसी है, कितनी हो रही है. और सेकेंड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी साइन ऑफ एंगल. सो अमाउंट ऑफ रोटेशन डिफाइन करेगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल को और डायरेक्शन डिफाइन करेगा उसकी साइन को. साइन मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेशन रहेगी तब प्लस वाला सिंबल पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव है इसलिए प्लस वाला सिंबल यूज़ करेंगे. और जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी, नेगेटिव एंगल रहता है तो वहाँ पर हम साइन माइनस वाला साइन यूज़ करेंगे. तो ये थी इसकी डायरेक्टेड एंगल की डेफिनेशन, उसके लिए नोटेशंस, उसको डिनोट करने के लिए नोटेशंस. डायरेक्शन एंगल है, डायरेक्टेड एंगल है, सो
वहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसलिए एंगल ए ओ बी और बी ओ ए इक्वल नहीं रहेंगे। यह हाई स्कूल में इक्वल रहते थे, लेकिन अब डायरेक्टेड एंगल्स है, नॉट दे आर नॉट इक्वल। दो डायरेक्शंस हमने देखे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेशन रहेगी एंगल इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में रहेगी जब रोटेशन देन एंगल इज नेगेटिव। और डायरेक्टेड एंगल्स के दो पार्ट्स है, दो इम्पॉर्टेंट उसके पॉइंट्स है। वो क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दैट इज साइन ऑफ एंगल। पॉजिटिव एंगल, अभी हमने पॉजिटिव एंगल को देखा है, उसी को सेपरेटली डिफाइन करते हैं। हियर इनिशियल आर्म, ये इनिशियल आर्म इज rotating in anti-clockwise direction, therefore it is positive angle. If the initial side rotates in anti-clockwise direction, then measure of direction directed angle is positive. Negative angle, here in this figure, initial arm is rotating in clockwise sense, clockwise direction, then it is called negative angle. If the initial side rotates in clockwise direction, then the measure of directed angle is called negative angle. Next article is types of angles. First one, zero angle. If the initial arm and terminal arm coincides, that is amount of rotation of initial arm and amount of rotation of initial arm is zero, is called zero angle. In zero angle, amount of rotation is zero. That means initial arm and terminal arm coincides. So in this figure, ray OA and OB coincides है, यानी OA इनिशियल साइड है, OB टर्मिनल साइड है, दोनों भी कोइंसाइड हो रहे हैं, रोटेशन ज़ीरो है, देयरफॉर इट इज़ ज़ीरो एंगल. Second, straight angle. If the initial arm and terminal arm are opposite, then directed angle is called straight angle. OA इनिशियल आर्म है, OB टर्मिनल आर्म है, अपोजिट डायरेक्शन में, therefore such angle is called straight angle. और स्ट्रेट एंगल की अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या रहती है? 180 डिग्री. यहाँ पर दो डायरेक्शंस हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम इसको मेजर करेंगे तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी? प्लस 180 डिग्री, क्योंकि इसको हम मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव एंगल है, प्लस 180 डिग्री. जब इसको हम मेजर करते हैं एंड क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेगेटिव एंगल है. सो ये स्ट्रेट एंगल माइनस 180 डिग्री रहेगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी मेजरमेंट है प्लस 180 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी रोटेशन है, उसकी अमाउंट ऑफ रोटेशन है माइनस 180 डिग्री. थर्ड, co-terminal angles. The directed angles of different measures having same positions of initial ray and terminal ray are called co-terminal angles. Directed angles है of different measures है having same position, different measures है but same position है, then these angles are called co-terminal angles. For example, in this figure या दो एंगल्स हैं. फर्स्ट एंगल, ये इनिशियल आर्म रोटेट कर रहा है 30 डिग्री. जब हम इनिशियल आर्म को रोटेट करते हैं 30 डिग्री
कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने रोटेट किया, 30 डिग्री की अमाउंट ऑफ रोटेशन मिली हमको। उसके बाद सेकेंड टाइम इसको हम फिर रोटेट कर रहे हैं, फिर हमने इसको रोटेट किया, इसको रोटेशन प्रोवाइड की। रोटेशन प्रोवाइड करने के बाद टर्मिनल आर्म जो है कोइंसाइड हो गया, मतलब इनिशियल आर्म यहाँ पर था, उसको हमने रोटेशन प्रोवाइड किया। इतनी रोटेशन प्रोवाइड करने के बाद टर्मिनल आर्म जो है अब सेम पोजीशन पे रही है, 30 डिग्री रोटेशन पर भी और 390 डिग्री रोटेशन पर भी वो सेम पोजीशन पर आ गया। इनिशियल आर्म तो सेम पोजीशन पर ही था 30 डिग्री में, ये इनिशियल आर्म 30 डिग्री की हमने रोटेशन अप्लाई किए, सो ये इसका टर्मिनल आर्म, ये 30 डिग्री हमको रोटेशन फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, रोटेशन अप्लाई की। रोटेशन क्या है, कंप्लीट रोटेशन अप्लाई किया हमने यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री, फिर और 30 डिग्री हमने उसको रोटेट किया, तो 360 प्लस 30 390, और पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए हमने प्लस का सिंबल अप्लाई किया। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन के बाद इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म सेम रहते हैं, देन दैट एंगल इज कॉल्ड को-टर्मिनल। को-टर्मिनल मीन्स को मीन्स सेम, सेम टर्मिनल आर्म जब हमको मिलते हैं, कब, जब अमाउंट ऑफ रोटेशन हमने दो डिफरेंट 2 टाइम्स हमने रोटेशन अप्लाई की। फर्स्ट टाइम 30 डिग्री का रोटेशन अप्लाई किया, टर्मिनल आर्म ये पोजीशन पर है। सेकेंड टाइम हमने 390 डिग्री की रोटेशन अप्लाई की, तब भी टर्मिनल आर्म सेम पोजीशन पर है। सो सच एंगल्स आर कॉल्ड को-टर्मिनल्स। अदर वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, आफ्टर द अमाउंट ऑफ रोटेशन if the initial arm and terminal arm are same, then it is called co-terminal angles. After the amount of rotation, initial arm and terminal arms are same, then these angles are called co-terminal angles. ये था ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। को-टर्मिनल एंगल्स को जब हम अल्जेब्रिकली हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए मेथड क्या होगा कि if the difference between the measures of two angles is integral multiple of 360 degree, then these angles are called co-terminal angle। मतलब हमको डिफरेंस लेना है। 2 टाइम्स हमने देखा यहाँ पे इस फिगर में, फर्स्ट टाइम रोटेशन 30 डिग्री, सेकेंड टाइम 390 डिग्री, इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म सेम पोजीशन पर है, को-टर्मिनल एंगल है, ये ज्योमेट्रिकली। इसको हमको अल्जेब्रिकली फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक एंगल की जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, फर्स्ट एंगल 30 डिग्री का है, सेकेंड एंगल 390 डिग्री का है, तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी लार्ज एंगल माइनस स्मॉल एंगल करते हैं। 390 माइनस 30 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब दो एंगल का डिफरेंस लेने पर हमको 360 मिल रहा है, यानी 360 या फिर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 360, 4 टाइम्स 360, यानी इसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 360, यानी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 360, 3 टाइम्स 360। तो डिफरेंस ऑफ एंगल जब हमको मल्टीपल ऑफ 360 मिलेगा, देन एंगल्स आर को-टर्मिनल्स। इस पर कुछ एक्सरसाइज में सम्स भी है, जब हम सम्स को डील करेंगे तो हमको और आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 कैसे मिल रहा है, और वो सिंपल सा है। तो अभी हमने देखा को-टर्मिनल एंगल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा है कि 2 टाइम्स हमको 2 डिफरेंट एंगल्स मिल रहे हैं, या फिर 2 टाइम्स हम रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने 30 डिग्री अप्लाई किया, सेकेंड टाइम 390 डिग्री रोटेशन अप्लाई किया, तब भी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम पोजीशन पर थे। सच एंगल्स आर को-टर्मिनल एंगल्स। लेट्स सी अनदर। Standard angles. Standard angle. In a rectangular coordinate system, a directed angle with its vertex at origin, an initial ray along positive x-axis is called standard angle or angle in a standard position. मतलब इस डेफिनेशन में 2
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट है वर्टेक्स एट ओरिजिन, ये फिक्स होना चाहिए। मतलब एंगल के अंदर क्या होता है, उसका वर्टेक्स रहता है, इनिशियल आर्म रहता है, टर्मिनल आर्म रहता है, यानी 3 पार्ट्स रहते हैं एंगल्स के। और उसके बाद इसकी रोटेशन रहती है, पॉजिटिव या फिर मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डायरेक्टेड एंगल में हमको क्या क्या रहता है कि उसके पार्ट्स क्या मिलते हैं, वर्टेक्स, इनिशियल आर्म, सेकेंड, थर्ड टर्मिनल आर्म रहता है, और फोर्थ नंबर पर इसके हम डायरेक्शन की पोजीशन देखते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो एंगल का वर्टेक्स जो है फिक्स्ड ओरिजिन होना चाहिए। सेकेंड, इनिशियल रे जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहना चाहिए, देन दैट एंगल इज स्टैंडर्ड एंगल। फॉर एग्जांपल इस फिगर में ओ वर्टेक्स है, ओ एक्स इनिशियल आर्म है, इनिशियल रे है, और वो कहाँ पर है, तो वर्टेक्स जो है इसका ओरिजिन पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इनिशियल रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका इनिशियल रे ओ एक्स है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही है। तो कंडीशन जब सेटिस्फाइड करेगा एंगल, दैट एंगल इज स्टैंडर्ड एंगल। सो एंगल एक्स ओ पी इज ए स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल क्यों है, क्योंकि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही चाहिए, नेगेटिव साइड पर नहीं चाहिए। तो ये दो कंडीशन जो एंगल सेटिस्फाइड करेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल। और यहाँ पर ऑप्शन रहता है, उसका टर्मिनल आर्म कहीं पर भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, कहीं भी हो सकता है, तब भी वो स्टैंडर्ड पोजीशन में रहेगा। तो स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट वर्टेक्स ओरिजिन पर होना चाहिए, और इनिशियल आर्म, इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल में ओ वर्टेक्स है, ओरिजिन पर ही है, ओ एक्स इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, देयरफॉर इट इज स्टैंडर्ड एंगल। ये पर भी एंगल थर्ड में भी वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, देयरफॉर इट इज standard angle. So these three angles XOP, XOQ and QXOR are the standard angles. Next, angle in a quadrant. A directed angle in a standard position is said to be angle in a quadrant if it is terminal arm lies in that टर्मिनल रे लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। फिर इसमें एक कंडीशन, यानी स्टैंडर्ड एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए पहले, मतलब उसका स्टैंडर्ड एंगल के लिए दो कंडीशन थी कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होना चाहिए और इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, मतलब ये स्टैंडर्ड एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन is said to be angle in a quadrant if its terminal arm lies in that quadrant। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये एंगल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एंगल रहेगा उसका टर्मिनल आर्म हमको चेक करना है। टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में रहेगा वो रहेगा एंगल इन दैट क्वाड्रेंट। मतलब इस फिगर में ये स्टैंडर्ड एंगल है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ओ एक्स इसका इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है स्टैंडर्ड पोजीशन में, और उसका टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देयरफॉर दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। एंगल इन ए क्वाड्रेंट मतलब क्या रहेगा, उसका टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उसको कहेंगे हम एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल वर्टेक्स ओरिजिन है, ओ एक्स इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, स्टैंडर्ड पोजीशन में
टर्मिनल आर्म सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो दिस इज कॉल्ड एंगल इन क्वाड्रेंट सेकेंड। फर्स्ट फिगर में क्या था, स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल्स है दोनों भी, इसका टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म इस सेकेंड फिगर में, टर्मिनल आर्म सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो दिस इज कॉल्ड एंगल इन क्वाड्रेंट सेकेंड। थर्ड फिगर में एंगल का इनिशियल टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में, सो दिस इज एंगल इन क्वाड्रेंट थर्ड। फोर्थ फिगर में टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो it is called angle in a quadrant 4. Let's move to the next type. Quadrantal angles. A directed angle in standard position whose terminal ray lies along x-axis or y-axis is called quadrantal angle. स्टैंडर्ड फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में, वर्टेक्स ओरिजिन पर चाहिए, इनिशियल आर्म कहाँ चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, वो एक्सिस का इनिशियल आर्म है। अब क्वाड्रेंटल एंगल को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए हमको, इसका टर्मिनल आर्म चेक करना है। टर्मिनल आर्म कहाँ है, क्वाड्रेंट पे चाहिए, मतलब इसका हमको कहाँ पर चाहिए, क्वाड्रेंटल एंगल है तो मतलब वो एक्सेस पे चाहिए। एक्सेस मीन्स पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है और निगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर टर्मिनल आर्म इन तीन पोजीशन में कहीं भी रहेगा देन दैट एंगल इज क्वाड्रेंटल एंगल। स्टैंडर्ड पोजीशन यानी वर्टेक्स ओरिजिन पर होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर उसका इनिशियल आर्म होना चाहिए और उसका जो टर्मिनल आर्म है वो एक्सेस पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस फिगर में ओ एक्स डैश टर्मिनल आर्म है, कहाँ पर है, निगेटिव एक्सिस पर है, एक्सेस पर ही है, एक्सेस पर रहेगा तब क्वाड्रेंटल एंगल। सेकेंड फिगर में उसका टर्मिनल आर्म पॉजिटिव एक्सिस पर है, एक्सेस पर है, देयरफॉर क्वाड्रेंटल एंगल। थर्ड वन में टर्मिनल आर्म कहाँ पर है, निगेटिव एक्सिस पर है, एक्सेस पर है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेंटल एंगल। सो क्वाड्रेंटल एंगल जो है क्या होते हैं कि मेजर्स ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज। और इन तीनों फिगर में जो एंगल्स है एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ वाई और एक्स ओ वाई डैश, दीज एंगल्स आर क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब ये हमने जितने हमारे पास सिलेबस में एंगल्स के टाइप्स थे हमने इसको स्टडी किया है। स्टार्ट में हमने देखा था जीरो एंगल, अमाउंट रोटेशन जीरो रहेगी, स्ट्रेट एंगल, इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म डिफरेंट पोजीशन पे रहते हैं और उसकी रोटेशन उसकी मेजरमेंट जो है 180 डिग्री रहती है। पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में हमको एंगल मिलता है। उसके बाद हमने देखा है को टर्मिनल। को टर्मिनल में क्या होता है कि टर्मिनल आर्म जो कोइंसाइड रहता है, रोटेशन कंप्लीट होने के बाद भी सेम पोजीशन पर ही रहता है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड एंगल को देखा है। स्टैंडर्ड एंगल में क्या होता है कि स्टैंडर्ड एंगल में उसका वर्टेक्स ओरिजिन रहता है और इनिशियल आर्म जो है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, तब वो स्टैंडर्ड एंगल रहेगा। स्टैंडर्ड एंगल में जब हम एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं, किसके लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड एंगल में सिर्फ वर्टेक्स और इनिशियल आर्म के लिए कंडीशंस हैं और जब हम टर्मिनल आर्म के लिए भी कंडीशन जब डालते हैं तब वो एंगल जो है चेंज होता है। जैसे हमने टर्मिनल आर्म अगर क्वाड्रेंट में रहेगा तो एंगल इन ए क्वाड्रेंट रहेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। और जिसका टर्मिनल आर्म एक्सेस पे रहेगा क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंट में रहेगा एंगल इन ए क्वाड्रेंट और एक्सेस पे जब टर्मिनल आर्म रहेगा, जैसे यहाँ पर निगेटिव एक्स एक्सिस पर टर्मिनल आर्म है, यहाँ टर्मिनल आर्म पॉजिटिव एक्सिस पर है, यहाँ निगेटिव एक्सिस पर है, सो दैट एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। सिंपल सा है, एक से दो मरतबा इसको रीड कीजिए, फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, सो वी कैन से
we can define the types of angle. लास्ट में रेफरेंस एंगल, ये सिलेबस में नहीं है फिर भी हम उसको देख लेते हैं कि फॉर एन एंगल थीटा इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल थीटा जो है ना स्टैंडर्ड पोजीशन में, उसका वर्टेक्स पोजीशन, वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में. सो दिस एंगल which is in standard position is called reference angle if the positive acute angle formed by the terminal angle theta and x axis. मतलब जब भी हमने स्टैंडर्ड पोजीशन में जब हमने एंगल को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने इसको डिफाइन किया इस एंगल को. सो इस एंगल का अदर पार्ट जो बन रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए. तो एक्स एक्सिस के साथ उसका रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा इस एंगल का, ये एंगल यहाँ से आता है एक्स ओ पी से बोल लो एंगल है. इस एंगल का जो रिमेनिंग पार्ट एक्सेस के बाद एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एंगल. तो रेफरेंस एंगल क्या होता है, जो एंगल हमने प्रिपेयर किया स्टैंडर्ड एंगल में, उसका टर्मिनल आर्म से एक्स एक्सिस के साथ यानी निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, जितना पार्ट बन रहा है, जितनी रोटेशन डिफाइन हो रही है, वो एंगल रहेगा. तो यहाँ पर शेडेड पार्ट जो क्या रहेगा, रेफरेंस एंगल. ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है फिर भी हमने कन्वीनियंट के लिए इसको देखा है. सो डियर स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हमने इतना ही देखते हैं. इस लेक्चर में हमने जो है ना बेसिक को देखा है. बेसिक में हमने एंगल को डायरेक्टेड एंगल की डेफिनेशन को देखी है, टाइप्स ऑफ एंगल्स को देखा है हमने. तो इस वीडियो को रीड कीजिए, इसमें के जो डेफिनेशंस है और जो टाइप्स है उसको नोट कीजिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको ये यूज़ में आएंगे. और 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स, जितना भी मैथमेटिक्स है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने जितना भी स्टडी किया था अभी तक मैथमेटिक्स हाई स्कूल में, उसका फर्दर पार्ट है. लेकिन सारे कंसेप्ट वगैरह जो है कैसे हो थोड़े से ब्रॉड किए हुए हैं, उसको एक्सटेंड किया हुआ है. तो और रिमेनिंग पार्ट जो है ना हमारा वही हम हाई स्कूल का, जब भी हम कैलकुलेशन यूज़ करते थे हाई स्कूल में, हमने जितना भी मैथमेटिक्स सीखा है उसी को हम यूज़ करते हैं. तो ये इंट्रोडक्ट सारे चैप्टर्स जो है ना 11th के वो कैसे न्यू चैप्टर्स है, मतलब न्यू कंसेप्ट है. न्यू कंसेप्ट को जब हम स्टडी करते हैं उसके बेसिक्स को अगर अच्छे से स्टडी कर लिया, समझ लिया, तो उसके बाद जो है हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है. क्योंकि जब भी हम सम्स को सॉल्व करते हैं तो न्यू कंसेप्ट का जो आइडिया है वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं. उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में यानी 80% जो सिंप्लीफिकेशन रहता है वो जो हमने हाई स्कूल में स्टडी किया था उसी को हम यूटिलाइज करते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.